Dear students and all my dear viewers, this video what I am going to present today is the continuation of the first part of natural vegetation of ICSE Geography class 10. In the previous video of this chapter, I had described about the natural vegetation, kinds of vegetation and two types, means evergreen and deciduous forest have already been described in the first part. So before going through this video, I request to all the students to go to my previous video in which I have described the first two types, that is evergreen and deciduous forest. Particularly in this video, I will describe the remaining three types of natural vegetation, that is thorn or desert forest. Next one is littoral forest and the next one is the mountain forest. So these three forests will be discussed here in this particular video. Apart from that, I will describe about the importance of forest and the ways of conservation, needs for conservation. So the minute details of each and every part of the chapter will be discussed here in this particular video. The students are instructed to listen the video very carefully because I am describing the chapter on the basis of question answer, what type of questions may be asked in the exam. All probable questions for the board examinations are described here very clearly. So you have to pay a lot of attention. Before starting this video, I want to say that if any student has not yet subscribed my channel, please immediately subscribe it and just press the notification button so that you will get all my video very promptly. Try to share it as much as possible so that more and more students will be beneficial of my video. And if you like the video, you must like it. So before investing any further time, I am just coming to the point, and today I am just describing about the, first of all I am describing about the thorn forest. Yes, so here the first question arises here, that what should be the climatic conditions of the thorn forest. So thorn forest may be asked as the dry forest, it may be asked as the desert forest. So these three are the names of the same forest. So थॉर्न फॉरेस्ट का फीचर्स क्या है और वो किस एरिया में पाया जाता है और इसका क्या गुण होता है, ये सब चीज़ के बारे में लोग देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द थॉर्न फॉरेस्ट. First of all, rainfall for the thorn forest should be less than 25 सेंटीमीटर. मीन्स थॉर्न फॉरेस्ट उस एरिया में होता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है. ये आमतौर पर डिजर्ट एरिया है, यहाँ पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होना चाहिए. दूसरा है टेम्परेचर. क्लाइमेटिक कंडीशंस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर उस जगह का 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में अगर हो तो ज़्यादा सूटेबल है. इस तरह के फॉरेस्ट के लिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है. तो ये दो इसका क्लाइमेटिक कंडीशन याद रखेंगे. रेनफॉल शुड बी लेस देन 25 सेंटीमीटर और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है दैट शुड बी 25 to 27 डिग्री सी. Now I am coming to the areas where this forest is found, and the area most suitable, actually ये पाया जाता है राजस्थान, गुजरात, parts of पंजाब, हरियाणा and UP. But if the students are asked to write the areas of thorn forest, he should write first राजस्थान एंड गुजरात. स्टूडेंट को पहले ये दो चीज़ लिखना होगा, क्योंकि अगर दो पूछता है तो वो राजस्थान और गुजरात लिखे, फिर बाकी को लिखने का दरकार नहीं है उसको. अगर चार पूछता है तो वो पार्ट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा लिखेगा, लेकिन दो पूछता है, जनरली दो ही पूछता है, इसलिए राजस्थान और गुजरात. अगर वो राजस्थान गुजरात नहीं लिखता है और बाकी पार्ट लिखता है तो उसका मार्क्स कट सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ये राजस्थान और गुजरात में ही पाया जाता है. नाउ आई एम कमिंग टू द फीचर्स ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट. इसका पहला फीचर्स है प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स. थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं इसके रूट्स बहुत ही लंबे होते हैं. दूसरा है कि इनके जो प्लांट्स होते हैं उसमें पत्ते बहुत ही कम होते हैं या पत्ते बिल्कुल होते ही नहीं हैं. और तीसरा है कि दे हैव हार्ड थॉर्न्स. इसमें कांटा ज़्यादा होता है और कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं. शार्प स्पाइन्स होती हैं इसकी, जो आमतौर पर ड्राई क्लाइमेट के लिए सूटेबल होता है और ये यानी इसको बचाता है. तो हमने 3 पॉइंट देखा इसके फीचर्स में, लॉन्ग रूट्स, दूसरा फ्यू लीव्स और तीसरा हार्ड थॉर्न्स एंड शार्प स्पाइन्स. सो दीज आर द 3 features of the trees what are found in desert forest. Now I am coming
अबाउट द ट्रीज़, पर्टिकुलरली द नेम ऑफ द ट्रीज़ एंड देयर यूजफुलनेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ट्री जिसमें पाया जाता है, इसमें 3 तरह का ट्री हम डिस्क्राइब करेंगे। और मेरा पहला ट्री है यहाँ पर बबूल। तो बबूल का जो पेड़ होता है वो आमतौर पर इस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। इससे क्या लाभ है? तो पहला है इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर एल्डिंग गम्स, इससे गम्स निकाला जाता है। और साथ में इसका जो बार्क होता है ये यूजफुल होता है फॉर टैनिंग हाइड्स एंड स्किन्स। हाइड्स, स्किन्स यानी लेदर, चमड़ा, उसको खींचने में, जानवरों का चमड़ा खींचने के लिए इसके बार्क का, इसके छाल का यूज़ किया जाता है। दूसरा है किकार। किकार यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, इसमें ये इसका मेडिसिनल प्लांट है ये। सो इसका पहला यूजफुलनेस है, मेडिसिनल वैल्यू है इसका। और इसका जो बार्क है यानी इसका छाल और इसका लीव्स जो है वो क्या करता है, वो आमतौर पर यानी ब्लीडिंग अगर किसी को हो रहा है तो इसका छाल उस पर डालने से रुक सकता है। तो इसका मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होता है। और तीसरा है नीम। नीम का, वैसे तो नीम मेडिसिनल प्लांट ये भी है, इसका बहुत सारा लाभ होता है और नीम को हम लोग मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसका जो प्लांट्स होता है और इसके जो खासतौर पर लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, दे आर यूज टू रिमूव जर्म्स, जर्म्स को हटाने के लिए, कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए भी इसके पत्तों का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द ट्री दैट आर फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट। नाउ आई एम कमिंग टू अनदर पार्ट। और इसी थॉर्न फॉरेस्ट से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि जितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब्ड है और इसके बाहर किसी भी क्वेश्चन के आने का चांस लगभग ना के बराबर है। So my next question regarding the thorn forest is why the trees of thorn forest have long roots। जो मैंने अभी कहा कि रूट्स लॉन्ग होता है, मैंने कहा यहाँ पर कि इसका जो यानी ग्रोथ होता है वो स्टंटेड ग्रोथ होता है और इसका स्पाइन शार्प होता है। अब इस तीनों का कारण क्या है वो तो मैंने फीचर्स में कह दिया, बट अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो रूट है वो लॉन्ग क्यों होता है, तो स्टूडेंट ने तो रटा वहाँ पर समझ गया कि रूट लॉन्ग होता है, लेकिन इफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड व्हाई, तो क्या लिखेगा, द ट्रीज फाउंड इन द थॉर्न फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स। इसके लाभ क्या है, व्हिच इनेबल देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डेप्थ। यानी इसका मतलब हुआ कि थॉर्न फॉरेस्ट में जो पेड़ पाया जाता है तो वहाँ पर उस एरिया में पहले ही कहा है मैंने कि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है। तो रेनफॉल कम होता है तो इसका मतलब जो उसका रूट है वो मॉइस्चर की खोज में और नीचे, क्योंकि वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है तो और नीचे जाता जाता है, इसीलिए उसका रूट जो है वो लॉन्ग हो जाता है। यानी मॉइस्चर की खोज में वो नीचे की तरफ यानी अर्थ में जाने लगता है। दूसरा इसका स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ होता है ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स की कमी के कारण और वाटर की कमी के कारण। चूँकि यहाँ के जो ज़मीन है उसमें ना तो मिनरल है और ना वाटर है, दैट्स वाई द ग्रोथ इज स्टंटेड। और इसका शार्प स्पाइंस बहुत यूजफुल है इसके लिए। शार्प स्पाइंस हेल्प द ट्रीज एंड बुशेज टू कंजर्व वाटर को बचाता है, क्योंकि इसका जो पत्ता होता है वो बहुत ही छोटा होता है, पॉइंटेड होता है, जिस पर इवोपरेशन कम होता है और इवोपरेशन जितना कम होगा उतना ही उसका वाटर बचा रहेगा, तो वो ट्री के लिए यूज़फुल होगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने देखा, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एरिया, ट्री का फीचर्स, इसके अलावा पेड़ का नाम, पेड़ का यूजफुलनेस, उसके अलावा रीजन्स वगैरह क्यों होता है, तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा अगर वो सारे क्वेश्चंस को लर्न करता है। अब मैं चलता हूँ, अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ट्री है, तो नेक्स्ट ट्री मेरा क्या है, नेक्स्ट फॉरेस्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है लिटोरल फॉरेस्ट। लिटोरल फॉरेस्ट का दूसरा नाम टाइडल फॉरेस्ट भी है, इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। सो कई नाम है इसके भी। तो पहले इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पर ये ट्री उगता है यानी लिटोरल फॉरेस्ट होता है, समुद्र के किनारे होता है, ये तो क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वहाँ क्लाइमेट आमतौर पर वार्म होता है और वेट होता है। वार्म एंड वेट क्लाइमेट ये इसका फीचर्स है जो यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो है इसका रेनफॉल। द रेनफॉल शुड बी 150 to 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। तीसरा है टेम्परेचर यहाँ पर आमतौर पर 26 डिग्री से लेकर 29 डिग्री के बीच में हो तो ज़्यादा इसके लिए सूटेबल होता है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर सवाल कि जो ट्रीज ये फॉरेस्ट जो है लिटोरल फॉरेस्ट वो एक्चुअली कहाँ पाया जाता है, नेम द एरियाज ऑफ द लिटोरल फॉरेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो एरियाज में हम देखते हैं यहाँ पर एरियाज
ऑफ डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज में ये पाया जाता है। और अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें तो इसको हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में, और साथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड पर ये ज़्यादा पाया जाता है। सो अगर दो प्लेस का नाम तुमको पूछता है तो तुम लिख सकते हो वेस्ट बंगाल सुंदरबन, लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा गंगा का डेल्टा है, और साथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड, तो इसके लिए बेस्ट जगह है। अब चलते हैं यहाँ के जंगल जो होते हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके तीन फीचर्स को देखेंगे हम लोग। और पहला फीचर्स होता है द फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। लिटरल फॉरेस्ट काफ़ी डेंस होता है, बहुत घना जंगल होता है। और दूसरा है कि इसका जो ट्रीज़ है उसमें जो रूट्स होता है एक ब्रीदिंग रूट्स होता है, मतलब सांस लेने वाला रूट। पेड़ क्या होता है, इस रूट के सारे सांस लेता है, यानी वो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में काम करता है। इसके अलावा इसका जो रूट्स है वर्ष में पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है, मतलब डूबा हुआ होता है। तो वो हम लोग यहाँ पर इस 3 फीचर्स को देखा। अब इसके बाद आता है कि इस जंगल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ट्री पाया जाता है और इस ट्री का यूजफुलनेस क्या है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्री इस जंगल में पाया जाता है वो है सुंदरी ट्री। और सुंदरी ट्री का यूज आमतौर पर शिप बिल्डिंग के लिए किया जाता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। दूसरा ट्री का नाम है गुर्जन ट्री। गुर्जन इज यूज्ड फॉर फ्यूल एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ट्री व्हाट इज फाउंड हियर इट इज वो है हिंटल। हिंटल का यूज आमतौर पर फ्यूल के लिए और बोट मेकिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि बोट मेकिंग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी ज़रूरी चीज़ होता है यहाँ के लोगों के लिए। तो ज़्यादातर लकड़ी में बोट मेकिंग यहाँ पर लकड़ी में हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, जैसे कि यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट का कोई एग्जांपल पूछ दो, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अलावा अगर ये पूछता है कि सुंदरबन नाम इस वन का क्यों पड़ा, मतलब वाई दीज आर नोन एज सुंदरबन, तो बहुत ही इसका कॉन्क्रीट आंसर है। और आंसर ये है कि ये जो जंगल है उसमें जो ट्री ज़्यादातर ट्री जो पाया जाता है वह है सुंदरी ट्री, यानी जंगल में सुंदरी ट्री ज़्यादा पाया जाता है। तो सुंदरी ट्री के नाम पर ही इस जंगल का नाम है सुंदरबन। तो ये हमने देखा कि क्यों इसका नाम सुंदरबन है। क्या लिखेंगे, दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सुंदरबन बिकॉज ऑफ द एबंडेंस ऑफ सुंदरी ट्री हेयर इन दीज फॉरेस्ट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इस तरह से मैंने ये पार्ट जो था यानी लिटरल फॉरेस्ट का वो मैंने ख़त्म कर दिया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द अनदर फॉरेस्ट एंड दैट इज़ माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट के लिए हम लोग देखेंगे कि माउंटेन फॉरेस्ट में सबसे पहले कैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस होना चाहिए, क्योंकि हर फॉरेस्ट के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस, एरियाज, ट्रीज़, उसका यूजफुलनेस, फीचर्स, ये सब कुछ लर्न करने से बहुत सारे समस्या का समाधान स्टूडेंट का हो जाता है। और उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी कर दिया है और आने वाले क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर बोल दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि माउंटेन फॉरेस्ट का फीचर्स क्या है। सबसे पहला है कि रेनफॉल शुड बी 200 सेंटीमीटर एंड अबव, यानी वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ के ऊपर होता है ये जंगल। तो पहाड़ के ऊपर जंगल होता है तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है और तो इसलिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। दूसरा है टेम्परेचर शुड बी लेस देन 20 डिग्री सी, क्योंकि जैसे ही चूँकि माउंटेन के ऊपर होता है तो माउंटेन हाइट पर होता है, जितना ऊपर जाते हैं उतना गर्मी कम होता जाता है। तो क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर 20 डिग्री सी से कम टेम्परेचर यहाँ पर होता है। और तीसरा यहाँ पर कि अल्टीट्यूड यानी हाइट जो होना चाहिए दैट शुड बी 1500 मीटर से लेकर 3300 मीटर के बीच में अगर इसका हाइट हो तो ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये था इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस था। अब इस बात चलते हैं इसमें एरियाज़ के ऊपर। तो किस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, टेम्परेट जोन ऑफ द हिमालयाज़, हिमालय का टेम्परेट जोन यानी कश्मीर से लेकर आसाम तक ये जंगल पाया जाता है। और अगर पर्टिकुलरली नाम कहें तो इसके अलावा नीलगिरी हिल्स में, अन्नामलाई हिल्स में ये जंगल पाया जाता है। अब यहाँ पर चलते हैं इस ट्रीज का फीचर्स क्या है, किस तरह का फीचर। पहला है यहाँ पर कि इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ मिक्स्ड डिसीडियस एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसमें डिसीडियस भी होता है और कॉनिफेरस भी, दोनों का मिक्सचर होता है ये जंगल। इसके बाद दूसरा कहें तो ये डेंस फॉरेस्ट है,
बहुत ही घना जंगल है। तीसरा होता है कि हाइट ऑफ द ट्री जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द अल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के अल्टीट्यूड के हिसाब से इसका हाइट ज़्यादा होता चला जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि इस जंगल के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज और उसके यूजफुलनेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला ट्री हमारा होगा चिरपाइन। चिरपाइन इस जंगल में ज़्यादा पाया जाता है और इसका काम आमतौर पर होता है पैकिंग केसेज ऑफ टी, चाय का बक्सा, पैकिंग केस। दूसरा है यहाँ पर कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ रेसिन एंड टर्पेंटाइन। रेसिन और टर्पेंटाइन के एक्सट्रैक्शन में भी इस पेड़ का यूज होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ट्री है इस जंगल का वो है देवदार ट्री, और देवदार ट्री का यूज आमतौर पर रेलवे स्लीपर के लिए किया जाता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट ट्री है वो है सिल्वर फर, और सिल्वर फर का यूज आमतौर पर पेपर बनाने में यानी कागज़ के लिए, इसके अलावा मैचेस बनाने लिए माचिस के लिए एंड पैकिंग केसेज में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था यहाँ पर ऑल 5 जो पार्ट्स है नेचुरल वेजिटेशन का, उसके एक एक पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना चाहिए, मीन्स वाई देयर इज़ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, और इसके लिए इसका कई टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट एडवांटेज। तो कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आंसर सेम होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा, पहला आंसर, फर्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट जैसे वुड, गम, फाइबर, फ्रूट्स, ये सब चीज़ हमें फ्रूट्स देता है यानी ट्रीज देता है। तो ये तो इसका एक जनरल एडवांटेज हमारा है ही। इसके अलावा ट्री के यूजफुलनेस के बारे में जितना बोला जाए वो कम है, फिर भी मैं यहाँ पर 4-5 पॉइंट को डिस्क्राइब करूँगा। और मेरा सेकंड जो यूजफुलनेस होगा ट्री का, दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। तो ये ट्री जो होता है वो सॉइल को इरोड होने से बचाता है, दूसरा एडवांटेज। तीसरा होता है कि ये एक तरह से यानी क्या करता है, हमें रेन देता है। ट्री जो होता है वो रेन देता है। और चौथा है यहाँ पर कि ये बर्ड्स और एनिमल्स के लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। मतलब बर्ड्स और एनिमल्स अपना घर बनाते हैं जंगलों में, तो उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। लेकिन इन चारों यूजेस से अलावा पांचवा यूज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? ये हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करता है। एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का मतलब कि ये हमारे द्वारा जो ब्रीद आउट किया हुआ जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और फिर उस ऑक्सीजन को हम लोग फिर से सांस लेते हैं। तो अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमारे द्वारा छोड़ा गया सारा कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर भर जाएगा और इंसान मर जाएगा। इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इंसान के जीने के लिए पेड़ पौधे का जीना जरूरी है। पेड़ पौधा है तभी इंसान है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है इसका। तो इस तरह से हमने 5 इसका यूजफुलनेस एंड एडवांटेज ट्री का देखा। अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता हूँ उससे रिलेटेड, और वो है मेरा कि जो मैंने पहला जो पॉइंट कहा था क्योंकि दूसरा पॉइंट कि सॉइल इरोशन से बचाता है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि पेड़ सॉइल इरोशन से कैसे बचाता है, मतलब व्हाई डू द फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, हाउ, कैसे बचाता है। तो अब पहला है कि ट्री का जो रूट्स होता है, जड़ होता है, वो रूट्स क्या करता है, सॉइल को पकड़ कर रखता है और वाटर या विंड में सॉइल को उड़ने या बहने से ये रोक देता है। दूसरा है ट्री जो होता है वो स्ट्रॉन्ग विंड को रोक देता है, यानी वो शेल्टर बेल्ट का काम करता है, यानी हवा जो है वो किसी मिट्टी को उड़ा कर नहीं ले जाएगी अगर पेड़ उसके बगल में लगाया गया है तो, यानी शेल्टर बेल्ट का काम करता है। तीसरा है ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, ग्रासेज, ये सब वाटर के फ्लो को कम कर देता है। तो वाटर वहाँ जमा हो जाता है। वाटर को जमा होने से क्या होता है, ये वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा यानी फॉरेस्ट यानी ट्री जो है वो हमें यानी सॉइल इरोशन से बचा लेता है। इसके बाद अगर देखें छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। एक्सप्लेन द वेज बाय विच वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है ये तो समझ गया, लेकिन हम बचाएं कैसे, कौन कौन सा तरीका है फॉरेस्ट को बचाने का। तो इसके लिए मैं 4-5 तरीका यहाँ समझाऊंगा जिस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। और पहला तरीका है हमारा सोशल फॉरेस्ट्री।
सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री का एकदम सीधे साधे लैंग्वेज में अगर बात करें तो अनकल्टिवेटेड या बैरन लैंड पर समाज के लोगों के द्वारा जो पेड़ लगाया जाता है उसको हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। तो अगर इनफर्टाइल या बैरन लैंड के ऊपर समाज के लोगों के द्वारा, सोसाइटी के कॉमन पीपल के द्वारा अगर वहाँ पेड़ लगाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल एफॉरेस्टेशन शुड बी कैरीड ऑन द बैरन लैंड, और यही सोशल फॉरेस्ट्री। दूसरा है प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द रोड, रेलवे, रिवर। रोड, रेलवे और रिवर के दोनों तरफ लाइन से अगर हम पेड़ लगाते हैं तो ये न तो हमारा एक्स्ट्रा कोई जगह लेगा और काफ़ी पेड़ भी यहाँ पर लग जाएगा। इसके अलावा तीसरा है डिफॉरेस्टेशन शुड बी बैंड, लकड़ी की जंगल को काटने पर पाबंदी लगनी चाहिए। और तीसरा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर देना चाहिए। और साथ में पीपल शुड बी इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव, और वन महोत्सव के लिए उसे इनकरेज करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम के द्वारा लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ट्री कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो ये यहाँ पर हमने वेज देखा, 5 वेज। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में जंगल आस्ते आस्ते कम क्यों हो रहा है? मीन्स व्हाट आर द रीजन्स फॉर रैपिड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस? व्हाट आर द रीजन्स फॉर द रैपिड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज? तो इसके लिए पहला कि सबसे बड़ा कारण मैं जो मानता हूँ है पॉपुलेशन। तो पहला पॉइंट मेरा हो गया पॉपुलेशन, क्योंकि क्या होता है जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो इंसान को ज़्यादा घर चाहिए, घर बनाने के लिए जंगल यानी पेड़ पौधों को काट कर वहाँ घर बना लिया। पॉपुलेशन बढ़ा तो आदमी क्या करता है, उसको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, तो क्या करेगा, बाग बगीचे को काट कर वहाँ पर खेती बाड़ी का काम शुरू कर देता है। तो ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसमें लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में या हाउसिंग एरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन या दूसरा है पॉइंट मेरा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम लोग फॉरेस्ट को ओवर यूटिलाइज करते हैं, जैसे हमको लकड़ी काटना है, उसका बार्क है, उसका लीव्स है, फ्यूल के रूप में, फॉडर के रूप में हम लोग हर तरह से यानी जंगल का दुरुपयोग करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा है कि रेलवे के विस्तार के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए भी जंगलों को काट दिया जाता है। और इस तरह से ये सारे के सारे चीज़ के जो हैं, दीज आर द मेन रीजन्स फॉर द रैपिड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम आवर कंट्री। तो इस तरह से ये आज का मेरा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। और ये चैप्टर का दोनों पार्ट तुम अच्छी तरह करोगे तो एग्ज़ाम में तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी इस चैप्टर से नहीं होगी, और तुम्हारा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, थैंक यू।